नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है दशहरा लाइटिंग 2022 मैसूर दशहरा इल्यूमिनेशन मैसूर सिटी से। Mysore Dasra is one of the most celebrated and popular festival in India. The city of Mysore has long tradition of celebrating Dasra festival. Dasra can be described as 10 days festival in South India, culminating on Vijayadashami. The Mysore Dasra is celebrated elaborately with a great enthusiasm. During this period, the whole Mysore undergoes serious changes and it is decorated beautifully with the street lighted and the trees decorated. It attracts a huge audience both from all over India and all over the world. Mysore Dasra 2022 is going to be celebrated from 26 September to 5th October 2022. All through Dasra, the brightly illuminated Mysore Palace and the entire city a sight to behold. Various culture and religious program highlighting the dance, music and the culture of the states of Karnataka are performed in front of the illuminated palace. Dasara celebrations commence with the puja performed to goddess Chamundeshwari temple atop the Chamundi hills with the presence of Vodiyar royal couple and the state officials. The Mysore Palace is one of the most glorious and loaded pieces of architecture in India. During the Dasra, Mysore Palace is illuminated for 2 hours from 7 pm to 9 pm on the first 8 days and for 3 hours from 7 pm to 10 pm on Vijayadashami day with 97,000 bright lamps that amplify its beauty and majesty.
The sight of the palace is in itself worth it to make a visit to Mysore. The Chamundeshwari Electricity Supply Corporation is set to spend more than 5 crore on the illumination, as the government has already announced that it will be a grand Dasra after 2 years of subdued celebrations. This year, 124 kilometers of roads and streets and 96 junctions will be specially illuminated with LED bulbs. Last year, the illumination was done on 110 kilometers of roads and 89 circles. The illumination had brought tourists from far and wide, and this one move had spurred tourist arrivals, and the hospitality industry too saw a big boost in occupancy rates. The Mysore Dasra is certainly worth the time, money and effort invested in it. So plan your trips to Mysore, India and witness the splendor and astonishment of Mysore Dasra and India. जी जनाब, बहुत ही सुंदर। हमने कुछ ही दिन पहले मैसूर सिटी की वीडियो देखी है मेरे ख्याल में, या राज्य की वीडियो देखी थी, जिसमें मैसूर सिटी के बारे में मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा तारीख़ी शहर दिखा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग, और ये अपना महल जिसको ये जगमगाया हुआ है, पूरी एक लाइटिंग की हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैसूर सिटी मतलब जिस टाइम हमने देखा था तो हमें आइडिया हुआ था कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा लाइटिंग होती है, हमने देखी है, लाइटिंग लगी हुई होती है, गैप होता है, कोई गली होती है, कोई नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि दशहरा में, नवरात्रि में टोटल मैसूर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मतलब कोई कोना जहाँ तक नजरें जाएगी वहाँ तक जगमगा। अच्छा, दरख्त जो होते हैं सूख के होते हैं, पत्ते उनके झड़ चुके होते हैं, उन दरख्तों को पूरा लाइटिंग से लपेट दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई पॉइंट, कोई चीज़ रह ना जाए। चौराहे, पूरे चौराहे 124 किलोमीटर के रोड सजाए गए हैं, और लास्ट ईयर बता रहे हैं कि 110 किलोमीटर के रोड सजाए गए।
बहुत तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई गली, शायद कोई कूचा, शायद कोई रोड का, शायद कोई चौरंगी, शायद कोई बिल्डिंग रह गई हो। मैंने जितना वीडियो में देखा, मेरी नज़रें जहाँ तक जा रही थी, अच्छा मैं दूर दूर तक भी देखने की कोशिश करी थी कि शायद कहीं पे मुझे सादा सुनसान एरिया दिखे, सिंपल एरिया दिखे, लेकिन ऐसा नहीं था। सिटी के एक तरीके से हम ये कह सकते हैं गोशे गोशे को, कोने कोने को चमका दिया गया है। अच्छा, कुछ बिल्डिंग जगमगा रहा है, कुछ बिल्डिंग ऐसी होती होंगी जैसे गवर्नमेंट सजाती होगी, गवर्नमेंट की तरफ से होता होगा। 5 कुछ करोड़ जैसे चौरंगी है। अच्छा, कुछ जगह ऐसी होती होंगी प्राइवेट या लोगों के अपने घर या अपनी गलियाँ, मुझे ऐसा लगता है लोगों की कंट्रीब्यूट से, और एक कम्युनिटी होती है, एक जमात होती है, इस तरह से मिल के मेरे ख्याल में शायद होता होगा। और कुछ जगहों पे गवर्नमेंट करती होगी। नहीं, गवर्नमेंट इसके अंदर तो जो जहाँ तक हमें बताया गया है वीडियो के ताउन से, वो तो ये बताया गया है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। अच्छा। 5 करोड़ रुपए लगे हैं, लागत आई है। और बाकी पर्सनली अगर लोगों ने सजाया है अपने घरों को, अपनी गलियों को, तो वो बात दीगर है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हीं का होगा ये। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वाकई मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये दशहरा का इवेंट है, तो आप ये लगाएं कि दिवाली में क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, ये 10 दिन में दशहरा होता है ना? दशहरा यानी 10 नहीं नहीं, हाँ वही 10वां दिन जो होता है ना, हाँ। जैसे नवरात्रि 9 दिनों की होती है। हाँ। नवरात्रि जब ख़त्म होती है तो दशहरा हो जाता है। तो दशहरा होता यानी कि नेक्स्ट डे। हाँ, वही 9वें के बाद 10वां दिन होता है। और उस दिन भी मुझे लगता है बुरी शक्तियों को, बुरी ताकतों को जलाया जाता होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। खुशी, की अच्छा लाइटिंग की वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं खुशी का त्यौहार है, और एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का एक मकसद है। और हर त्यौहार के अंदर कोई ना कोई कहानी है, उस कहानी के अंदर कोई ना कोई मैसेज है, और उस मैसेज के अंदर इंसान एक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ले सकता है, और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। जिस तरह से रोशनी की गई है, जिस तरह से रोशन त्यौहार है, इस तरीके से हम अपने अंदर को भी रोशन कर सकते हैं, उस वाक़े से, उस स्टोरी से, उस मकसद से लेके। बिल्कुल। अच्छा, मैंने अक्सर इनके त्योहारों में एक चीज़ कॉमन देखी है। एक तो आरती पूजा ये सब तो होता है, इसके साथ साथ मैंने देखा है डांस। एक मुझे लगता है अहम जुज़ है इनके हर फेस्टिवल के अंदर। आप देखेंगे नवरात्रि में हम देखा डांस होता है बाकायदा का, और इसके अलावा हमने दिवाली में भी देखा है अक्सर डांस वगैरह हो रहा होता है, डांस प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, समझे ये इनके रिलीजन में, इनके ट्रेडिशन में शामिल है। बिल्कुल, इसके बगैर समझे कोई फेस्टिवल कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। इसमें कोई भी शक नहीं है। होली में भी हमने देखा है अक्सर। अच्छा, हमारे यहाँ भी कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं लाइटिंग वाले, लेकिन यहाँ पर अच्छा कुछ जगहों पे होती है, कुछ पे नहीं होती, कुछ पे तो होते मैं कह रही हूँ कि खाली खाली आपको स्पेस, जैसे कोई एक बिल्डिंग आपको सजी हुई दिख गई, उसके बाद 4 बिल्डिंगें खाली दिखेंगी, फिर कोई एक बिल्डिंग दिख जाएगी, या कोई एक एरिया आपको बहुत ज़्यादा सजा हुआ दिख गया। हमारे साइड पे 1 नंबर जो है बहुत सजा हुआ होता है, लेकिन दूसरे 7 नंबर या 8 नंबर इतना ज़्यादा नहीं सजा हुआ होता है। एक मतलब लेकिन यहाँ पे तो लगातार सारे एरियाज़ को सजाया अभी गया। मेरी 3-4 दिन पहले ही किसी के साथ मुलाकात हुई, तो उसमें ये हुआ कि मतलब बाइक पे सफ़र हो रहा था, तो बंदा बता रहा था ये लाइटिंग हुई है, रबी अव्वल का महीना चल रहा है, हमारा रबी अव्वल, तो मतलब बंदा कह रहा था कि यार जिस तरीके से पिछले साल, उससे पिछले साल रोशनी होती थी, जगमगाहट होती थी शहर में, चरागा होता था, वो नहीं है, उतनी नहीं है। कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। एकदम से कोई रोड आ जाता था तो वहाँ पे रौनक होती थी, लाइटिंग होती थी, कहीं पे बिल्कुल अंधेरा होता था। इस बार मुझे तो आप ये कह रहे हैं कहीं है कहीं नहीं, मुझे तो बहुत ही कम दिख रहा है। तो जहाँ से हम गुजर रहे थे तो कहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा, तो ये जिक्र हुआ। फिर मैंने उसका एक जवाब दिया तो उसने फ़ौरन कहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने कहा हालात, अब लोगों के वो हालात देखें। हमारे यहाँ तो इंडिविजुअली खुद लोग करते हैं, या मस्जिद वाले खुद करते हैं, या इंतज़ामिया करती है, लोग करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सिफर है, ये मैं खुल के कह सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा अब लोगों के वो हालात नहीं रहे। आप देखो महंगाई हमारे यहाँ इतनी बढ़ रही है, चीज़ें इतनी महंगी हो रही है, तो फिर उसने क्या कहा, मैंने कहा महंगाई की वजह से अब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अपना पेट पूजा ही मुश्किल हो रही है, तो लोग चरागा कैसे करेंगे। तो उसके बाद में उन्होंने क्या जवाब दिया, बोला मेरे पास घरों के बाहर बालकनी में नहीं लगा देते तार वार, तो बोला मेरे पास पिछले साल की ख़राब पड़ी हुई थी, मैंने उसको सेट किया और मैंने वो लगाई है, मैंने ख़रीदी नहीं है। उसने फिर ये बताया कि मैंने भी पुरानी वाली लगाई है, उसको सेट करके ख़राब हो गई थी। तो होता है ना कि इंसान के हालात अच्छे होते हैं तो इंसान ख़रीदता है। थोड़ा सा डिटेल में अगर आप इस बात को सोचें कि हम किस हद तक अनस्टेबल हो चुके हैं कि इंसान सेलिब्रेशन और त्यौहार की तरफ कब आता है, जब बुनियादी ज़रूरियात से फारिग हो जाए, या वो पूरी हो जाए, खाने को मिले, अच्छा कपड़ा पहनने को मिले, शेल्टर मिले, तो उसके बाद वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता है। बिल्कुल ऐसा ही सही है ना। अब यहाँ पे वो हालात हैं कि
कि आपने सही कहा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा ना। तो जब पेट पूजा ही मुश्किल हो जाए, लोग मर रहे हो भूख से, मुफलिसी से, रोज़गार ना हो, तो फिर उसके आपको पता है कि परसों की ही बात है कि एक अंकल बिल्कुल रोने लग गए, जॉब उनका चला गया और उनके घर पे 17,000 का बिल आया। और आप यूनिट सुनेंगे 155 यूनिट पे, जबकि आप मुझे याद आता है लास्ट वीक की ही बात है, आप जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली में 200 यूनिट के ऊपर तो बिल फ्री है। एक वीडियो बहुत वायरल हुई कि एक लड़का है, यूट्यूबर है शायद, वो दिल्ली के कुछ मोहल्लों में, इलाकों में घूम रहा है। तो वो बाकायदा लोगों से, औरतें घर के बाहर बैठी हुई हैं, लोग बाहर गलियों में घूम रहे हैं, तो उनके घर में दरवाजे पे जाके पूछ रहे हैं उनसे, कह रहा है यार आप लोगों का बिल बताएं। सिफर, मतलब सिफर बिल है। बोला लेकिन हर बंदा हर घर के अंदर गया, घर के बाहर दरवाज़ा बजाया, कोई लोग बाहर खड़े हुए, उनसे पूछ रहा आपका बिल क्या आता है? बोलता हमारा बिल सिफर आता है। सिफर क्यों? तो मैं खुद हैरान। तो बोला अच्छा दिखाएं, बिल ले आए। कई घर वाले बाकायदा बिल ला के उस लड़के को, यूट्यूबर को दिखा रहे हैं, ये देखें सिफर। तो फिर उन्होंने समझाया, बोला हमारे यहाँ 200 यूनिट से कम हो तो हमारे यहाँ फ्री है बिजली। अच्छा। 200 यूनिट से कम की बिजली फ्री है, आपका बिल तो ज़रूर आएगा, उसमें सिफर होगा। अगर 200 यूनिट से, देखिए इससे मुराद ये है कि आप एक गरीब फैमिली हो। 200 यूनिट का मुराद ये है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ तो एवरेज बिल ही यही आता है ना ज़्यादातर। हाँ, फैमिलीज का 200, 185, 180 ऐसे ही तो है। 200 का मतलब क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली है, एक अनअफोर्डेबल फैमिली है, वो कम चलाती है, वो कोई बिजनेस नहीं कर रही घर के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज़ नहीं है उसका, कमर्शियल यूज़ नहीं है, और बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर एसी, मिसाल के तौर पे फ्रिज, 2-2, 3-3 कमरों में फ्रिज पड़े हुए हैं, पंखे ज़्यादा चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, XYZ, जूसर मशीन है, रूम कूलर वगैरह, ठीक है ना, और मतलब ओवन है, ऐशो इशरत का सामान, एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है। तो बिजली के जो बिल खींचती है। देखिए 200 यूनिट उन्होंने जो रखा है, तो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि पंखा, बल्ब, चंद चीज़ें हों तो इंसान का 200 के अंडर होगा। तो इसका मतलब वो एक गरीब फैमिली है, उन्हें माफ़ किया गया। 200 से ऊपर वालों को बिल देंगे। हमारे यहाँ 180 या 155 या 175 पे 17,000, 18,000 बिल आता है। और आपको पता है लास्ट टाइम एक वीडियो वायरल हुई फेसबुक पे, हुआ ये कि लोग अपने घरों का कचरा नहीं होता, कूड़ादान, कचरे का डब्बा जो होता है, डस्टबिन, उठा के कैमसी की रीडिंग करने कैसी की रीडिंग करने वो लोग आए थे, उनके ऊपर अपनी बालकोनी से फेंक रहे। थोड़ा सा और पीछे आ जाएं। हुआ ये कि हमारे यहाँ जो बिल आता है ना, हाँ, उस पर टैक्स लग रहा है कैमसी, उसमें लगा रहे हैं टैक्स कचरे का। मिसाल के तौर पर हमारी हुकूमत हमसे पैसे मांगे, एक ही ज़रिया रह गया है, बिजली का बिल। मतलब तरह तरह के टैक्स बिजली के बिल के साथ आते हैं। यानी कि अब हमारे यहाँ अलग से कोई बिल आए ना, पानी का या फलाना टैक्स, तो वो लोग देते नहीं हैं। मतलब वो मतलब एक तरह से माइंड ही नहीं है सेट। तो बिजली का बिल लोग लाजमी देते हैं। लेकिन बिजली के बिल के साथ ये चक्कर हो गया है कि हालांकि कराची में के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है, लेकिन वो इस तरह गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है कि उसके साथ कचरा उठाने का टैक्स भी उसके अंदर शामिल कर दिया ना। जब टीवी का टैक्स है, टीवी का टैक्स है, जो आप बता रहे थे मस्जिद में भी टीवी का टैक्स आ रहा है। हमारे यहाँ टीवी नहीं है, फिर भी टीवी का टैक्स आ रहा है। तो कह रहे हैं कि अपना कचरे का जब टैक्स लगा ना, तो लोगों ने बाकायदा आवाज़ उठाई, बाकायदा वायरल हुई ये चीज़ें। तो लोगों ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ी किसी इलाके में बिजली का खंभा सही करने आ रही है, तो लोगों ने अपने घर के कचरे उठा के उनकी गाड़ी में डाले। भैया टैक्स हम आप ले रहे हो ना हमसे, तो ये कचरा भी लेके जाओ। तो बड़ी ये वीडियो वायरल हुई है। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि कम से कम सोशल मीडिया की वजह से लोग एक तो हुए। अब एक बंदा घर के अंदर शोर कर रहा है, कचरे के बिल आ गया, कचरे का, वो पता ही नहीं सोशल मीडिया वजह से ये वायरल हो रही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। बात किधर थी, ये तो अपनी राम कहानी लेके बैठ गए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से काटो।